Assalamu alaikum dear participants. This is Muhammad Abdul Rahman from Park Pure Line. Park Pure Line is basically working in three domains like food, nutrition, and halal. Under three domains, we have different programs and projects that are running in collaboration with industry, private sector, and academia. Our programs include food safety awareness sessions, technical trainings, workshops, and different seminars. We also offer advisory and R&D facilities to food industry and private sector, distance learning programs, safe food production units, industry development projects, and academic industrial collaborations. Under academic industrial collaboration, we have strategic partnerships with different public and private sector institutes like Agriculture University Faisalabad, Punjab University, GC Women University Faisalabad, Lyallpur campus of Sargodha University, and Imperial College of Business Studies, and some other private sector organizations like Bureau Veritas, Mana Halal Research Center, Fahmal Halal, Center for Halal Assurance, Seashine, and some other partner organizations. So that was some basic introduction of Park Pure Line. Also, we are offering membership facilities to different food science personnel. We are offering professional membership opportunity to food science professionals who can join us, and we offer different discounts to the participants upon joining in our trainings, and also we will indulge individuals in different projects that we are running with industry and private sector. So that was little introduction about Park Airline. Let's go for today's training. That is implementing good laboratory practices (GLP) in food quality labs. हम इस ट्रेनिंग के अंदर गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस की बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स हैं उनके अंदर हम गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस क्या हैं, जीएलपीज़ की डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या एप्लीकेशन है इसकी, जीएलपीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स क्या हैं, हिस्ट्री है, किस तरीके से जीएलपीज़ डेवलप हुई हैं, जीएलपीज़ के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स और बेनिफिट्स क्या हैं, फिर जीएलपी रेगुलेटरी प्रोग्राम क्या है, और इसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे ISO 17025 वर्जन 2005, इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और जनरल जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री के अंदर वो क्या हैं। सो फर्स्ट, general introduction of GLP, good laboratory practices. GLP is an FDA regulation. FDA stands for Food and Drug Administration. FDA एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की जो कि GLPs को रेगुलेट करती है। GLPs के लिए मुख्तलिफ सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस और इसके प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है। GLPs embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored, archived, and reported. GLP एक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस देती है जिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लेबॉर्ट्री स्टडीज़ को प्लान करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं, फर्दर टेस्ट और एनालिसिस की मॉनिटरिंग करते हैं, उनको टेस्ट के रिजल्ट्स और डाटा को स्टोर करना आर्काइव में और उनको रिपोर्ट करना, ये सभी चीज़ों के लिए जीएलपी एक मैकेनिज्म ऑफर करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएलपी, हिस्ट्री में किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन आई, फर्दर क्या अपडेट्स इसमें आई। GLP was first introduced in New Zealand and Denmark in 1972. 1972 में GLP न्यूजीलैंड और डेनमार्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब
इंट्रोड्यूस बेसिकली एफडीए ने करवाया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया। इन डॉक्यूमेंट्स में फर्दर फिर अपडेट्स और इसकी मॉडिफिकेशंस आई। तो बुनियादी तौर पे एक मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एफडीए ने सर्वे किया, जिसमें मुख्तलिफ फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए। उस बेस पे फिर एफडीए ने डिसाइड किया कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और सेट प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं, जिनके तहत मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज वर्क करेंगी। सो एफडीए का फॉर्मल रेगुलेशन 1978 में क्रिएट किया गया। ओके, जीएलपी वाज इंस्टीट्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, but toxicology labs in data submitted to the FDA by pharmaceutical companies. Industrial Biotech Test Lab was the most notable case, where thousands of safety tests for chemical manufacturers were falsely claimed to have been performed or were so poor. अब इसकी बेस क्या बनी कि या तो उन लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स उनके मतलब पुअर थे, एज पर मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी इस पर क्वेश्चन मार्क आया, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ मंजर आम पे हैं। उस बेस पे फिर एफडीए ने डिसाइड किया कि हम कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं, जिनके तहत लेबॉर्ट्रीज अपना प्रोसीजर वर्क करेंगी। For example, in the early 70s, FDA became aware of cases of poor laboratory practices all over the United States. FDA decided to do an in-depth investigation of 40 toxicology labs. उन 40 टॉक्सिकोलॉजी लैब्स की एनालिसिस किया, स्टडी किया, उनकी सारी चीज़ों को गो थ्रू हुए, एक्टिविटीज़ को देखा। तो इसके नतीजे में क्या फाइंडिंग्स आई कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी वो कर रहे थे और पुअर लैब प्रैक्टिसेस भी वो परफॉर्म कर रहे थे। अब ये दो चीज़ें बनी जीएलपीज को डिज़ाइन करने में, बेस बनी ये दोनों चीज़ें। The findings were equipment not be calibrated to standard form, therefore giving wrong measurements, incorrect or inaccurate accounts of the actual lab study, inadequate test systems. तो इस बेस पे फिर फर्दर गाइडलाइंस दी गई जीएलपीज की। वाई वाज जीएलपी क्रिएटेड? वही चीज़ के दो इसकी बेसिस बनी हैं। एक तो ये कि लैब पर्सनल जो काम कर रहे हैं या लैब का एनवायरनमेंट किसी हिसाब से भी लैब एनालिसिस की वजह से डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना कि लैब प्रैक्टिस जो है ना वो परफॉर्म ना की जाए, बल्कि एक्चुअल एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड हो, जिसके तहत एक मेथड हो, जिसके तहत लैब के अंदर काम किया जाए, और इसके अलावा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचा जाए, धोखाधड़ी से बचा जाए। Examples of some of these poor lab practices found were equipment not been calibrated to standard form, therefore giving wrong measurements, incorrect or inaccurate accounts of the actual lab study. So further, GLP is to clarify that every step of the analysis is valid or not. इस चीज़ को clarify करना कि GLP का हर step valid है कि नहीं, सॉरी एनालिसिस का हर स्टेप क्लैरिफाई है कि नहीं। उसमें फिर हम जीएलपीज की तरफ जाते हैं। जीएलपीज क्या है? हमें एसओपीज देता है, हमें गाइडलाइंस देता है, हमें उसकी प्रिंसिपल देता है, काम करने का तरीकाकार वजह करता है। Ensure the quality and integrity of data submitted to FDA in support of the safety of regulated products. GLP have heavy emphasis on data recording, record and specimen retention. GLPs का मेन फोकस किस चीज़ पे है? डाटा को रिकॉर्ड किया जाए, हर स्टेप को रिकॉर्ड किया जाए, हर फॉर एग्जांपल आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग के प्रोसीजर्स पैरामीटर्स रिकॉर्डेड हों, सैम्पलिंग की तमाम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक सेट प्रोसीजर के तहत परफॉर्म किया जाए। इसी तरह स्पेसिमेन रिटेंशन, फर्दर जो भी सैम्पलिंग एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट राइटिंग है, हर एक स्टेप को मतलब एक रिकॉर्ड कीपिंग में लेके आया जाए, और जो भी एनालिसिस किया उसका सैंपल फर्दर एज अ रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो, ताकि कल को हम कहीं ट्रेसेबिलिटी स्टडी करते हैं तो उसमें फिर वो हमारे काम आ सके।
Generating reproducible, accurate analytical results is important for laboratory success, but it is not necessarily easy to do. इसके लिए ये है कि एक्यूरेट और लेबॉर्ट्री जो एक्यूरेट रिजल्ट्स एनालिटिकल रिजल्ट्स को जनरेट करना, it's not an easy task. However, it should be maintained for the purpose of maintaining or to have a check and balance for traceability. Purpose of good lab practices. There are processes and tools that are critical components of successful laboratory quality assurance programs. In general, many of the practices that led to a successful quality assurance program are also required for general business, such as good communication, engaged employees, management, a strong training program. मतलब लैब के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें या लेबॉर्ट्री क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जीएलपीज की या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम फिर जीएलपीज के तहत डिस्कस करते हैं। उसमें लैब के ओवरऑल फंक्शनैलिटी को प्रॉपर करने के लिए एक गुड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एंगेज एम्प्लॉयज़ का आपस में एंगेजमेंट, आपस में कॉपरेशन, कम्युनिकेशन बेहतर हो, लेबॉर्ट्री की ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट बेहतर हो, और जो एम्प्लॉयज़ और पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर पैरामीटर के ऊपर रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी हों, जनरलाइज ट्रेनिंग्स भी हों, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स भी हों। GLP makes sure that the data submitted are a true reflection of the results that are obtained during the study. GLP also makes sure that not to indulge in any fraud activity by labs, promotes international acceptance of tests. GLP also makes sure that data is traceable. अब GLP क्या है? एक तो बेनिफिट ये है इसका कि हर चीज़ मैनेज होगी प्रॉपरली, और इंटरनेशनल जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म होंगे, टेस्ट रिजल्ट्स ओवरऑल एक्सेप्टेबल होंगे, और इसी तरह लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में जो ट्रेसिबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट के रिजल्ट्स उनको हमने उनकी कंप्लायंस करनी है, उनको फर्दर कल को ऑडिटिंग में लेके आना है, तो उनकी ट्रेसिबिलिटी यहाँ से हम कर सकते हैं। A GLP process is an important component of all quality programs. तमाम क्वालिटी प्रोग्राम्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है GLP का प्रोसेस. It is applicable in all aspects of a laboratory, including implementing, validating, maintaining the laboratory compliance. क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म में GLPs को हम इम्प्लीमेंटेशन में भी लेके आ सकते हैं, उसको वैलिडेशन जब करनी है लेबॉर्ट्री एनालिसिस में, रिजल्ट्स और स्टडी एनालिसिस करना है, तब उसको हम वैलिडेट करते हुए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह मेंटेनिंग लेबॉर्ट्री कंप्लायंस, लेबॉर्ट्री की कंप्लायंस शो करनी है, फॉर एग्जांपल उसमें एम्प्लॉय हाइजीन है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, और तमाम एस्पेक्ट्स उनको हम देखना है, तो हम GLPs के इन तीनों स्टेप्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। GLP is a set of principles that provides a framework for food laboratory studies that are planned, performed, monitored, reported and archived. तो हर स्टेप पे हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेते हैं? GLP से। The standard ISO 17025 variant 2005 used to accredit a laboratory is an example of a code of good laboratory practice. फॉर एग्जाम्पल इस स्टैंडर्ड को हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या है? एक गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस की एग्जाम्पल है। अब हम स्टडी करेंगे रेगुलेटरी GLP प्रोग्राम क्या है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा अदारा है, और किस बेस पे इसको वो रेगुलेट करता है। जी कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। ओके। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये GLP के प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे ये जो FDA के अंडर काम करता है ये अदारा, और GLP के प्रिंसिपल्स, उनके SOPs और सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये डिज़ाइन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। नॉन क्लिनिकल
health and environmental safety study intended for submission to appropriate regulate authorities. अब जैसे मैंने ट्रेनिंग के स्टार्ट में बात की थी कि जो दो किस्म के इदारे हैं यूएस के, जो नंबर वन एफडीए और नंबर टू ईपीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जीएलपी को रेगुलेट करती है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का झैली अदारा है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब एफडीए क्या है? कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 21 पार्ट 58, जिसको गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस फॉर नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज, ये इस सेक्शन में डील किया जाता है। और इसी तरह जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन नंबर 40 वॉल्यूम 7 पार्ट 160, जो कि डील करता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स पेस्टिसाइड प्रोग्राम, जिसमें हमने लास्ट में हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी ISO 22000 पे और हैसप पे, जिसमें हमने पढ़ा था PRP प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। उसी के अंडर पेस्टिसाइड प्रोग्राम को डील किया जाता है। तो ये पेस्टिसाइड प्रोग्राम बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डील करती है। इसी तरह कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस नंबर 40 पार्ट 28 पार्ट 792 टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल एक्ट को डील करता है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इन तीन किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है, जो कि डायरेक्टली नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ को डील करती है। इसी तरह उसके अंडर जो पीआरपी का प्रोग्राम होता है जिसमें पेस्टिसाइड्स को डील किया जाता है, वो भी इसी के अंडर ही डील किया जाता है। और इसी तरह टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल एक्ट भी यही ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। तो बुनियादी तौर पे जो जीएलपी की फार्मूलेशन है उसमें इन दोनों अदारों का कलीदी किरदार है। ओके जी, अब हम बात करते हैं जीएलपी प्रिंसिपल्स की। जीएलपी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जीएलपी के टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है, फैसिलिटीज हैं, ऑपरेटर्स, मटेरियल एंड रिएजेंट्स, टेस्ट सिस्टम्स को डील किया जाता है, टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस को डील किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें डिफाइन किए जाते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी, देन रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स, इस बारे में भी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं इन प्रिंसिपल्स में। स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स, रिकॉर्ड कीपिंग की भी बात होती है। अब हम वन बाय वन इन सभी को गो थ्रू होते हैं। नंबर 1 है टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल, जहाँ पे टेस्ट को कंडक्ट करना है, जिस ऑर्गेनोग्राम के तहत जो एक हिरार्की होगी बुनियादी वो, और इसी तरह उनकी जो पर्सोनल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको भी हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। स्टडी पर्सोनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द जीएलपी प्रिंसिपल। जो पर्सोनल इस लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, ये जीएलपी का नंबर 1 प्रिंसिपल ये कहता है कि उनको उन तमाम रूल्स और रेगुलेशन जीएलपी प्रिंसिपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। असेस टू द स्टडी प्लान एंड अप्रोप्रिएट एसओपीज, जो स्टडी प्लान है उन तक उनकी रसाई हो और अप्रोप्रिएट एसओपी डिज़ाइन किए गए हैं। कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसओपीज, जो एसओपीज बने हैं उनको वो वहाँ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कंप्लायंस शो कर सकें ड्यूरिंग लेबोरेटरी एनालिसिस। रिकॉर्ड रॉ डाटा, इसको रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। स्टडी पर्सोनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डाटा। एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रिस्क। अब हेल्थ प्रिकॉशंस में क्या है, जितने भी पर्सनल सेफ्टी और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो इसके अंडर डिस्कस होते हैं कि वो इन सभी को कंप्लाई करें। इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टडी, जो स्टडी वहाँ पे कंडक्ट हो रही है उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करें। जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबोरेटरी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली इसमें उसकी कंप्लायंस होती है। देन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम सेकंड प्रिंसिपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल पर्सोनल में एक्सेस टू द अपडेटेड स्टडी प्लान एंड एसओपीज, डॉक्यूमेंटेड
verification of the compliance of study plan to the GLP principles, inspections to determine compliance of the study with GLP principles. अब क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम में क्या है, जो जैसे इंटरनल ऑडिट की बात हमने पिछली ट्रेनिंग में की थी हैसप में, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ इंटरनल ऑडिट की बात आती है कि लेबॉर्ट्री में जो भी वर्किंग है उसमें जो लेबॉर्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं या क्वालिटी इंश्योरेंस पर्सोनल हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ भी शामिल है कि वो वहाँ पे रूटीन इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट करें। ठीक है, फॉर दैट पर्पज टू शो कंप्लायंस ऑफ द स्टडी विद GLP प्रिंसिपल्स, कि आया वहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो GLP प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही चल रही है। अब फिर वो ऑडिट की सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि ऑडिट चेकलिस्ट डिज़ाइन करना, ऑडिट्स का जो SOPs हैं उनको फॉलो करना, जो क्वालिटी पॉलिसी है उस लैब की उसके अकॉर्डिंगली सारी इंस्पेक्शन कंडक्ट करना। चेकलिस्ट बेस्ड ये होना चाहिए कि पेपर वर्क हो, उसमें चेकलिस्ट डिज़ाइन हो, लाइक पर्सोनल हैं उनकी कंडीशन कैसी है, जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पे कैसा है, जो पर्सनल्स को डील कर रहे हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल की जो पर्सनल हाइजीन है, जो उनका ओवरऑल गेटअप है वो SOPs के अकॉर्डिंगली ही है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। 3 types of inspections like study based inspections, facility based inspections और process based inspections। 3 किस्म की inspections वहाँ पे की जाती हैं। स्टडी बेस्ड है, फैसिलिटी बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड। स्टडी बेस्ड में क्या है, जो भी जो लैब की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली लाइक सारे SOPs डिज़ाइन करना, जो प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं लैब एनालिसिस के, स्टडी के, जो भी टेस्ट कंडक्ट करने हैं उनको सारा गो थ्रू करना। इसके बाद फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शंस, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैब का प्रॉपर होना चाहिए, जो उससे रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं लाइक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट की फैसिलिटी है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, वहाँ पे ओवरऑल रूम इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अदर यूटिलिटीज़ हैं जिनसे लैब पर्सनल डील करेंगे, क्या वो वहाँ पे सब चीज़ें प्रॉपर हैं, लैब का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन किया गया है, ये इस कैटेगरी में इसकी इंस्पेक्शन होती है। इसी तरह प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन, जो प्रोसेसिंग एंड जो प्रोसीजर वहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए, रिजल्ट्स को डिपेक्ट करने के लिए, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं उनको रन करने के लिए, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, क्या क्या उनके SOPs प्रोसीजर्स हैं, सभी को इस कैटेगरी में डिस्कस किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट्स फॉर एक्यूरेट एंड फुल डिस्क्रिप्शन, जो फाइनल रिपोर्ट है उसकी इंस्पेक्शन और उसकी फुल डिस्क्रिप्शन करनी। रिपोर्ट द इंस्पेक्शन रिजल्ट्स टू द मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइजर है, उनको रिपोर्ट करना, उसकी स्टेटमेंट्स करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें। फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, सूटेबल साइज होना चाहिए लेबॉर्ट्री का, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन इसकी प्रॉपर हो, लेबॉर्ट्री का एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स हैं वो भी फिर इसी प्रिंसिपल के तहत डिस्कस होते हैं। एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को मुख्तलिफ मतलब सेपरेट इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल एक माइक्रोबायोलॉजी लैब है, वहाँ पे कोई माइक्रोबियल कल्चर वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उसकी एनालिसिस किया जा रहा है, तो उसके लिए फिर वो एक प्रॉपर हुड हो जहाँ पे सेपरेट इन्वायरमेंट में वहाँ पे सारी इसकी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएँ। इसी तरह बायोकेमिकल टेस्टिंग है, कुछ सेंसिटिव टेस्टिंग है, कुछ वायरस से रिलेटेड कुछ टेस्टिंग है, वायरस से रिलेटेड डीलिंग है। तो मतलब ऐसे चैप्टर्स जो कि कुछ स्पेशल नेचर के हैं, जिनसे फर्दर इन्वायरमेंट पोल्यूट हो सकता है या फर्दर जो पर्सन जिससे डील कर रहा है वो खुद से उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए सेपरेट जो लाइक कैबन्स हो सकते हैं, लाइक हुड हो सकती है, या कोई ऐसा सिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। आइसोलेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम्स एंड individual projects to protect from biological hazards, suitable rooms for diagnosis, treatment and control of diseases। अब किसी स्पेशल डिजीज़ की डायग्नोसिस की जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल लेबॉर्ट्री है या इससे रेलेवेंट कोई बायोकेमिकल सब्सटेंसेस से डील कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल
रूम्स भी हो सकते हैं, स्पेशल चैम्बर्स भी हो सकते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी में मैंने बताया कि स्पेशल चैम्बर्स होते हैं, लाइक स्पेशल हुड डिज़ाइन की जाती है। तो इस तरह का एक मतलब रूम और इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए। फिर स्टोरेज रूम हैं, सैंपल्स के लिए हैं, या जो आपके जो लाइक डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी अलग से स्टोरेज फैसिलिटी या कैबन्स या रूम्स वहाँ पे होने चाहिए। ये चार सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ में आती हैं। अब आगे ऑपरेटर्स, मटेरियल्स और रिएजेंट्स की बात हो रही है। ऑपरेटर्स ऑफ अप्रोप्रिएट डिज़ाइन एंड एडिक्वेट कैपेसिटी, अप्रोप्रिएट डिज़ाइन हो, उसकी प्रॉपर एडिक्वेट कैपेसिटी हो। फॉर एग्जांपल बीकर्स हैं, ग्लासवेयर है, फ्लास्क हैं, या अदर जो भी ग्लासवेयर है जिसे डील किया जा रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उस स्टडी, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जिसकी जहाँ पे जितनी ज़रूरत है, जितनी लेवल की, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली ही हों। डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ फ्लास्क हैं, ग्रेजुएट सिलेंडर्स हैं, या इसके अलावा कोई और इक्विपमेंट्स हैं जिनसे डील किया जा रहा है, तो उनकी प्रॉपर कैलिब्रेशन एज पर डिजाइन सेट SOPs। फिर apparatus and materials not to interfere with the test systems. Chemicals, reagent and solution should be labeled to indicate identity, expiry and specific storage instructions. अब मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी मेंशन करनी है। पहले भी जो कंपनी की तरफ से होती है एक्सपायरी मेंशन होती है, अगर कुछ फॉर्मुलेशन खुद से लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक फिर एक्सपायरी डेट वहाँ पे मेंशन करना। फिर उसके लिए स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं कुछ जिनको फ्रीजर या फ्रिज में स्टोर किया जाना है, उनको उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाए। कुछ हैं जिनको जनरल कैबन्स में रखा जा सकता है, उनको कैबन्स में अकॉर्डिंगली रखा जाए। इसी तरह उनकी हैंडलिंग के बारे में भी यहाँ पे SOPs हैं। टेस्ट सिस्टम्स, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट सिस्टम्स, biological test systems, then records of source, date of arrival and arrival conditions of test systems, proper identification of test systems in their container or when removed, cleaning and sanitization of containers, pest control agents to be documented। मतलब जो भी मुख्तलिफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल टेस्ट सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर उनका सोर्स रिकॉर्ड करना, कब आए हैं, किस सोर्स से आए हैं, क्या इसकी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म था, हर चीज़ प्रॉपर A to Z इसको रिकॉर्ड करना, उसके लिए अलग से रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना। फिर इसी तरह मुख्तलिफ कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, मुख्तलिफ जो भी यूटिलिटीज़ हैं उनकी क्लीनिंग। फिर इसी तरह पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स जो लेबॉर्ट्री में आए हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना। सर काइंडली लास्ट एक्सपायरी डेट है उसको जरा मेंशन करें। जी क्या कह रहे हैं आप? एक्सपायरी डेट की बात आप कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स और रिएजेंट्स लेबॉर्ट्री के अंदर आप लेके आ रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड में फिर ख़ास तौर पे उनकी एक्सपायरी की बात होती है कि एक्सपायरी उनकी, एक तो जो कंपनी की तरफ से जो रिएजेंट की बोतल है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से मेंशन होती है। इसके अलावा कुछ रिएजेंट्स लेबॉर्ट्री के अंदर खुद से प्रिपेयर किए जाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं। लाइक कोई स्टडी करनी है, उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया आपने, कोई फार्मूलेशन प्रिपेयर की, कोई डाइल्यूशन मेड की आपने बनाई। फॉर एग्जांपल कुछ एसिड तैयार किए, उनकी डाइल्यूशन की, HCl है, जो H2SO4 है, उनकी डाइल्यूशन की। तो या इसके अलावा कुछ और रिएजेंट्स और केमिकल एजेंट्स हैं, उन सभी की एक्सपायरी फिर प्रॉपर खुद से उसके लेबल के ऊपर मेंशन करनी, ताकि उस रिएजेंट का मिसयूज ना हो सके, या उसको प्रॉपर उसकी एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली ही उसको इस्तेमाल किया जाए। ओके जी, टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स, रिसीट, हैंडलिंग, सैम्पलिंग एंड स्टोरेज, characterization, non-stability of test and reference items, stability of the test items in its vehicle or container, experiments to determine stability in tank mixers used in the field studies, samples for analytical purposes for each batch। मतलब इसमें टेस्ट और रेफरेंस आइटम्स की बात हो रही है, उनकी जो भी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में उसकी प्रॉपर हैंडलिंग में फर्दर फिर उनकी फॉर एग्जांपल कोई भी जो रीएजेंट और रेफरेंस आइटम्स आप परचेज करते हैं उनकी उसकी हैंडलिंग कंडीशंस, हैंडलिंग एसओपीज हैं, उसकी सैम्पलिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, उसकी करेक्टराइजेशन क्या है, फॉर एग्जांपल कलर है, उसकी विस्कोसिटी है, उसकी अदर मेजरमेंट्स हैं, उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर है, सब चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली मतलब मैनेज करना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिएजेंट है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, उसको फिर प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स है उस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, ये सारी चीज़ इस चीज़ में आ जाती हैं। आगे बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज की। रिटन और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इस जीएलपी की है कि हर स्टेप को हर स्टेज पे डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। Written procedures for our laboratories program, they define how to carry out protocol specified activities, most often written in a chronological listing of action steps. They are written to explain how the procedures are supposed to work. मतलब ए टू जी जितनी भी आपकी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है लेबोरेटरी के अंदर, जो भी सैंपल एनालिसिस है, रिजल्ट्स की डिपिक्शन है, किसी इक्विपमेंट को यूज़ करना, हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर एसओपीज मेंशन हो। फॉर एग्जांपल HCl की बोतल ओपन करनी है, उसकी फर्दर डाइल्यूशन करनी है, फर्दर उसको यूज़ करना है किसी भी एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर रिटन आपकी एसओपी बुक में हर चीज़ उसकी प्रोसीजर मेंशन हो कि किस तरीके से एसिड को डील करने के लिए क्या क्या एसओपीज अडॉप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल एसओपीज में ये चीज़ भी आएगी कि अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग, अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, लैब कोट हो, इसी तरह हैंडल कैसे करना है उस केमिकल को, उस रिएजेंट को, इसी तरह उसकी फार्मुलेशन कैसे करनी, फर्दर डाइल्यूशन कैसे करनी है, ठीक है, उसको डाइल्यूशन के बाद उसको स्टोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें। इसी तरह बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे हर इक्विपमेंट के ऊपर उसके एसओपीज मेंशन हो। फॉर एग्जांपल लैब इक्विपमेंट्स हैं, पीएच मीटर को कैसे यूज़ करना है, उसके एसओपीज उस कैबन में, उस पोर्शन में वहाँ पे मेंशन हो। फ्लेम फोटोमीटर है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका एसओपी वहाँ पे मेंशन हो। इसी तरह जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जीसीएमएस है, एलसीएमएस है या एफटीआईआर है, कोई भी इक्विपमेंट है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसके एसओपी बाकायदा वहाँ पे मेंशन हो। इसी तरह जो जनरल इक्विपमेंट्स हैं लाइक ओवन है, हॉट एयर ओवन है, इंक्यूबेटर है या अदर रेलेवेंट इक्विपमेंट्स हैं जो भी लेबोरेटरी के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी एसओपीज मेंशन करना है कि इसको कैसे जो है ना ऑपरेट करना है। इसके अलावा फर्दर जो लैब प्रोसेसिंग की बात आ रही है कि एनालिसिस कैसे कंडक्ट करने हैं, उनके भी बाकायदा आपकी जो रिटन एसओपी बुक है उसके अंदर हर चीज़ मेंशन हो। और जो कुछ ख़ास जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, उन टेस्ट को वहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाए कि ये टेस्ट इस तरीके से कंडक्ट करना है, एसओपीज वहाँ पे उनके मेंशन हों। Routine inspection, cleaning, maintenance, testing and calibration. Actions to be taken in response to equipment failure. अब इसके लिए भी एसओपी हो कि फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है, इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, उसकी प्रिकॉशंस क्या लेनी, उसका भी एसओपी वहाँ पे हो। मतलब ये नहीं कि खुद से उसको उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट शुरू कर देना, प्रॉपर एक एसओपी हो, उस एसओपी के तहत इस फर्दर फिर कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, उस रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट किया जाए, या उस कांटेक्ट करने से पहले क्या एसओपी है, क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं उस इक्विपमेंट को डील करने के लिए। इसी तरह कीपिंग रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग, स्टोरेज, मिक्सिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, डेफिनेशन ऑफ रॉ डाटा, एनालिटिकल मेथड्स भी सारे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो सारे एनलिस्टेड हों, डिफाइंड हों, उनके एसओपीज वहाँ पे आपकी जो एसओपी बुक है, लॉग बुक है, उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, प्रिपेयर द स्टडी प्लान, कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान, लाइक इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी, रिकॉर्ड्स, डेट्स, रेफरेंस टू टेस्ट मेथड्स,
इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्सर एंड फैसिलिटी, कंडक्ट ऑफ द स्टडी। अब कोई आपने खास टेस्ट का अंजाम देना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, कंडक्ट करना है, स्टडी कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले स्टडी प्लान आपने प्रिपेयर करना है। उसका भी बाकायदा मैकेनिज्म है। स्टडी प्लान के लिए फिर आपको फर्दर मुख्तलिफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, उसकी फर्दर रेफरेंस वहाँ पे देने हैं कि ये लिटरेचर में, हिस्ट्री में ये स्टडी इस तरीके से हुई, उसका रेफरेंस देना है, ताकि किसी सिस्टम को आप फॉलो करते हुए फर्दर अपनी स्टडी को कंडक्ट करें। कंटेंट ऑफ द स्टडी प्लान, इसमें आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, रिकॉर्ड्स, डेट्स, रेफरेंस, मतलब जो जो आपने एनालिसिस करने हैं, स्टडी परफॉर्म करनी है, उसका फिर सारा मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ओवरव्यू, सारी चीज़ें देनी है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, डेट वाइज हर चीज़ को मेंशन करना है। फिर रेफरेंस इंतहाई ज़रूरी है, रेफरेंस के बगैर साइंटिफिक लैब में, स्टडी में किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म करने, उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है कि इस टेस्ट का, स्टडी का फलां पोर्शन, इसका रेफरेंस ये है, इस मेथड को फॉलो करते हुए इसकी फर्दर अपडेशन में हम चीज़ों को लेके आए, ये सारी चीज़ें रेफरेंस में आ जाती हैं। ओके जी, रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स। अब फर्दर स्टडी रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है। इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट्स, a quality assurance program statement, description of materials and test methods, results, storage, samples, reference items, raw data, final reports, etc. अब इसमें ये है कि जो स्टडी कंडक्ट की है, उसके जो रिजल्ट्स आपके पास आए, फॉर एग्जांपल कोई आपने एचपीएलसी पे स्टडी की है, उसकी जो पीक्स आपके पास आई होंगी, उन पीक्स को कैसे आपने डिफाइन करना है। जीसीएमएस की पीक्स आई होंगी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसके रिजल्ट्स को कैसे डिपिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फूड एनालिसिस लेबोरेटरी में एक फ्लेवर एनालिसिस किया है जीसीएमएस पे, उसका वोलेटाइल प्रोफाइल चेक की है आपने, तो उन सभी को कैसे आपने रिजल्ट्स को डिपिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल एचपीएलसी के केस में हम मुख्तलिफ जो पीक्स हैं उनके थ्रू उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, डिपिक्ट करेंगे। इसी तरह और इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोर स्टडी कर रहे हैं, इसमें फ्रीनोग्राफ है, माइलोग्राफ है, ये जो सभी इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनके रिजल्ट्स हैं उनको कैसे डिपिक्ट करना है, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, प्रॉपर उनकी रिकॉर्ड कीपिंग हो। इसी तरह से जो मटेरियल्स और मेथड्स वहाँ पे टेस्ट में यूज़ हुए हैं उनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, उनके फिर रिजल्ट्स को डिपिक्ट करना, रिजल्ट्स को अनाउंस करना। उसमें फॉर एग्जांपल आप जो है उसका पेपर वर्क, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। हाउएवर जो लेबॉर्ट्री में है रिसर्च पर्पस के लिए जो एनालिसिस किया जा रहा है उसमें भी यही मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो स्टोरेज है, सैंपल्स की, रेफरेंस आइटम्स की, रॉ डाटा, फाइनल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसको भी अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है। Storage and retention of records and materials. The study plan, raw data, samples, inspection data and master schedules, SOPs, maintenance and calibration data. If any study material is disposed of, before expiry, the reason to be justified and documented, index of materials retained. अब इसमें स्टोरेज और रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटीरियल्स, मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना लेबॉर्ट्री के, या मुख्तलिफ मटीरियल्स जो लेबॉर्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स हैं, रिएजेंट्स हैं, कुछ जो आपके सैंपल्स हैं, जो स्टडी सैंपल्स हैं, इसी तरह कुछ और रेलेवेंट आइटम्स हैं, उनको स्टोरेज कैसे करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ उनको डिस्प्ले करना है। आगे FIFO की भी बात होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ अराइवल, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसी तरीके से
जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए, उनके लिए भी प्रॉपर एसओपीज हों। मतलब ये कि आपने किसी प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करना है तो आप फिर बजाय है कि सारे रिकॉर्ड को आप वन बाय वन चेक करें, आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत आप उस रिकॉर्ड को प्रॉपर वे में डेट वाइज मतलब उसको कैटेगराइज कर सकें। या इसी तरह जो आईटी के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स की जो भी रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं उसको फिर प्रॉपर सिस्टम के अंदर उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। इसी तरह मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन डाटा उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है। इफ एनी स्टडी मटेरियल डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी द रीजन टू बी जस्टिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। डिस्पोज ऑफ करने का भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर केमिकल को मतलब किसी मतलब मिस हैंडल कर रहे हैं या इम्प्रॉपर वे से उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हर केमिकल के ऊपर, हर रिएजेंट के ऊपर उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक बाकायदा तरीकाकार मेंशन होता है। आप उस तरीकाकार को फॉलो करें, बल्कि उसके एसओपीज में ये चीज़ भी मेंशन करें कि इसको अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए डिस्पोज ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल बाज़ रिएजेंट्स होते हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में ओपन नहीं कर सकते, अगर ओपन करेंगे तो उसके उनके फ्यूम्स वगैरह ओपन होंगे, वहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी होगी या ओवरऑल माहौल डिस्टर्ब होगा या कोई हैजर्ड वहाँ पे काज हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए फिर प्रॉपर उनके एसओपीज को फॉलो किया जाना चाहिए। ओके जी, ये हमने यहाँ तक जो है ना इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी किया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जीएलपी के, जिसमें हमने देखा टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल की बात हुई है, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम की बात हुई है, फैसिलिटीज़ की बात हुई है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट की बात हुई, ऑपरेटर्स मटेरियल एंड रिएजेंट्स की बात हुई, टेस्ट सिस्टम्स एंड टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंस, एसओपीज की बात हुई, परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी है, रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट्स है और स्टोरेज रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड मटेरियल की बात हुई है। अभी फर्दर हम कुछ इसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, जिसमें FIFO की भी बात होगी फर्दर। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करेंगे, व्हाट गुड लेबोरेटरी मस्ट कंटेन। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल, डस्ट। अब यहाँ पे ये जो पिछला पॉइंट है ये फैसिलिटीज, ये इससे रेलेवेंट है, फैसिलिटीज से रेलेवेंट है कि फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल, डस्ट एटसेट्रा। इंश्योर गुड वेंटिलेशन, प्रॉपर एलिमिनेशन एंड प्रेफर नेचुरल लाइट। एयर कंडीशनिंग द लैब विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? ताकि वहाँ पे जो भी रेजेंट्स हैं, केमिकल हैं, उनमें कोई एज सच इशू ना बने या उनके साथ कोई रिएक्शन का इशू ना बने। या आपके सैंपल्स वगैरह हैं लाइक फ्लोर सैंपल, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपका सैंपल ख़राब होने का खदशा है। एनफ स्पेस फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। कुछ बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर अलहदा से कैबन या अलहदा से रूम्स हों, जैसे GCMS है। आप उस इक्विपमेंट को सभी इक्विपमेंट्स के साथ नहीं रख सकते, आप उसके लिए एक अलहदा से कैबन डिज़ाइन करें। इसी तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसपे ये सारा जो है फूड की मिनरल्स वाला की स्टडी करते हैं, उसके लिए अलहदा से कैबन या अलहदा से स्पेस मौजूद हो। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग। टेक केयर ऑफ ऑल सेफ्टी पॉइंट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट। फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी अलार्म हो, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल हो, ताकि इन केस ऑफ फायर और फायर हैजर्ड फायर सेफ्टी अलार्म हो। या जो प्रॉपर सैंड और प्रॉपर जो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे मौजूद हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाने का SOP वहाँ पे डिस्प्ले हो। हर लैब के पर्सन को फायर सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, उसको फायर एक्सटिंग्विशर रन करने का मेथड और SOP पता हो और उसके ऊपर स्पेशली लिख के मेंशन करने हैं उसका SOP, और इस तरह उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स हो इस बारे में। इसी तरह इमरजेंसी एग्जिट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउ टू एग्जिट दैट एरिया, इस बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। इमरजेंसी एग्जिट खास तौर पे वहाँ पे मेंटेन किया जाना चाहिए, ऐसा डोर हो जिसको इमरजेंसी के केस में इजीली जहाँ से एस्केप आउट किया जा सके। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे हो सकता है कि 2 दरवाजे लाजमी तौर पर होने चाहिए, एक को इमरजेंसी एग्जिट डिफाइन कर दिया जाए।
तो इमरजेंसी एग्जिट हम वक्त मतलब ओपन ओपन होने के लिए मतलब इजीली ओपन हो सकता है। ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी एग्जिट मेंटेन कर लिया लेकिन उसके आगे कुछ ऐसी चीज़ें इक्विपमेंट बड़े रख दिए, कोई ऐसी चीज़ें रख दी है जो कि इजीली खुल ही नहीं सकता, इमरजेंसी के केस में खुल ही नहीं सकता। अल्लाह ना करे ऐसा इशू हो जाए तो फिर ऐसे केस में अगर दरवाज़ा ही ना खुल पाया तो उसका इमरजेंसी एग्जिट का फ़ायदा। तो इसी तरीके से एक टर्म यूज़ की जाती है इसमें, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस, EPR। इमरजेंसी के केस में किस तरीके से अपने आप को इजीली और सेफली स्केप आउट करना है उस विसिनिटी से, इसको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस ये है कि आप हम वक्त इमरजेंसी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रखें ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप प्रॉपर SOPs को फॉलो करें और वहाँ से स्केप आउट करें। लाइक फायर है, गैस लीकेज है, उस केस में कैसे स्किप करना है, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ पे बस्ट कर जाता है, कोई ऐसा रिएजेंट, कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसी फ्यूमिंग या ऐसा कोई वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो, ऐसी सूरत में आपने कैसे इजीली और सेफली एस्केप आउट करना है। इन सारी चीज़ों को हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस में और इमरजेंसी एग्जिट में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से अवॉइड अनक्लीनेबल स्पॉट्स इन फ्लोर, वॉल, सीलिंग, ये जनरल सैनिटेशन की बात हो रही है। एस्टैब्लिश प्रॉपर एरियाज फॉर स्टोरेज ऑफ इनकमिंग सैंपल्स एज वेल एज टेस्ट कंप्लीटेड सैंपल्स। प्रॉपर एरिया होना चाहिए सैंपल्स के लिए, स्टोरेज के लिए, उसके टेस्ट जो जिन पे कंडक्ट करने की स्टोरेज के लिए। आल्सो प्रोवाइड सैंपल कलेक्शन प्लेस एज वेल एज पैकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ टेस्टेड सैंपल्स। डिस्पोजल और पैकिंग के लिए अलग अलग एरियाज हों, अलग अलग बिन्स हों। Do this for GLP. Keep the things at its location after use. हर चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपरली उसकी जगह के ऊपर रखना। ये नहीं कि कोई चीज़ यूज़ की है उसकी प्रॉपर जगह से उठा के यूज़ कर ली लेकिन इधर उधर मतलब वो अपनी जगह के अलावा कहीं और जगह पे पड़ी है, तो ये भी एक हैजर्ड क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी को वो हिंडर कर सकता है। Store heavy things at bottom and if possible on trolleys. Give names of location to everything. Follow everything has the place and everything at its right place. Principle, इस principle को follow किया जाना चाहिए। Prepare location list and display it. लोकेशन लिस्ट प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल जी दरवाज़ा है, इसके ऊपर मेंशन होना चाहिए दरवाज़ा, इसके आगे कोई ऐसी चीज़ ना रखें। इसी तरह कोई विंडो है उसको मेंशन करें। कोई फॉर एग्जांपल वेस्ट बिन का एरिया वहाँ पे मेंशन करें। इसी तरह वॉशिंग एरिया को मेंशन करें। इस तरीके से आइडेंटिफाई एवरीथिंग विद इट्स नेम पर्पस। फॉलो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। उसमें ये होता है कि जो चीज़ पहले आप लेके आए हैं उसकी एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट के अकॉर्डिंगली इसको पहले यूज़ करें। अब इसमें फिर FIFO का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हर चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन रखें, हर चीज़ को उसकी प्रॉपर प्लेस के ऊपर रखें ताकि एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली पहले इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं कि कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी केमिकल्स एक्सपायर हो गए हैं, आप फ्रेश जो यूज़ करी जा रहे हो बड़े बड़े एक्सपायर हो गए पुराने, उनको बाद में आप यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें फिर वो स्टडी रिजल्ट्स में एक्यूरेसी नहीं आएगी। बेनिफिट्स में जो ऑलरेडी जो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हर चीज़ में प्रॉपर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस है अगर हम SOPs को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे GLPs को डिस्कस किया कि गुड लैब प्रैक्टिसेस के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसका जनरल ओवरव्यू क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे हम ISO 17025 जो कि बेस GLPs पे ही करता है, लेकिन फर्दर इसमें कुछ अपडेट्स हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत ISO के स्टैंडर्ड के तहत डिस्कस किया जाता है। हम इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। ISO 17025 बेसिकली है क्या? ये लैब मैनेजमेंट और लैब एक्रीडेशन को डील करता है। ISO का स्टैंडर्ड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ISO के मुख्तलिफ रूल्स और मुख्तलिफ रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। जैसे पहले हम
एक ट्रेनिंग कर चुके हैं ISO 22000 के बारे में। इसी तरह ISO 14001 भी है जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को डील करता है। इसी तरह ISO 9001 है जो क्वालिटी मैनेजमेंट QMS को डिस्कस करता है। ISO 17025 लैब एक्रीडेशन और लैब मैनेजमेंट को डील करता है। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है लैब मैनेजमेंट, लैब एक्रीडेशन और लैब की वर्किंग जो है इसको सर्टिफिकेशन के लिए। ISO 22000 जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ISO 17025 को लाजमी तौर पे डिस्कस करना होता है, क्योंकि FSSC 22000 एक ब्रॉडर वे में डिस्कस होता है, लेकिन ISO 22000 में फिर ISO 17025 को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ISO 17025 के बगैर ISO 22000 और FSSC 22000 को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें मुख्तलिफ एनालिसिस और टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग के दौरान मिल्क को मुख्तलिफ स्टेजेस पे एनालाइज करना, उसके क्वालिटी पैरामीटर को चेक करना, इंस्पेक्शन करना। इसी तरह मिल्क जब रिसीव होता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, उसके जो है मुख्तलिफ क्वालिटी एनालिसिस परफॉर्म करना, उसी की बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है टैंकर को। तो उस लेबॉर्ट्री का ISO 17025 रिकॉग्नाइज या सर्टिफाई होना ज़रूरी है। इन दैट केस इफ दैट इंडस्ट्री इज कंप्लाइंग FSSC 22000। सो लैब मैनेजमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो ऑन फैसिलिटी लैब, इंडस्ट्री या कंपनी की फैसिलिटी के ऊपर अपनी लैब मौजूद होना, या उस लैब को आउटसोर्स भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लैब की फैसिलिटी नहीं मौजूद तो किसी ISO 17025 रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्री को सैंपल्स भेजे जाते हैं, उनसे फिर एनालिसिस करवा के उनसे रिपोर्ट ली जाती है। और ISO 17025 एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसको जो भी लेबॉर्ट्री क्लेम करती है ISO 17025 रजिस्टर्ड, उनको उन SOPs को कंप्लाई करना ज़रूरी है। उसके बगैर ISO 17025 की सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकती। Okay, it specifies the general requirements for the competence to carry out tests and or calibrations including sampling. अब ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स देता है ये स्टैंडर्ड्स किसी भी लेबॉर्ट्री के लिए, उनके टेस्ट की परफॉर्मेंस, टेस्ट या इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन के लिए, या उनकी जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स हैं उनके लिए। इट कवर्स टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स। अब ये स्टैंडर्ड मेथड्स और SOPs भी देता है उनको परफॉर्म करने के लिए, नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स एंड लेबॉर्ट्री डेवलप्ड मेथड्स। इसी तरह कुछ नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स हैं या जो लेबॉर्ट्री ने खुद से अपनी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ स्टैंडर्ड्स या मेथड डेवलप किए हुए हैं, उनके लिए SOPs देता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग टेस्ट एंड और कैलिब्रेशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्ट, एनालिसिस या कैलिब्रेशंस परफॉर्म करती है वो ISO 17025 वर्जन 2005 रिकॉग्नाइज हो सकती है, लेकिन उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि जो ISO 17025 के जनरल प्रिंसिपल्स और SOPs और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फिर वो कंप्लाई करना ज़रूरी है। इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी प्रॉपर थर्ड पार्टी से ऑडिटिंग भी होती है। इंटरनल ऑडिटिंग आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी मतलब जो CB है, सर्टिफिकेशन बॉडी है, इनसे सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और फर्दर पे उनके स्टेप्स हैं, सर्टिफिकेट की रिन्यूअल है, सर्टिफिकेट्स को फर्दर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं स्टैंडर्ड में उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर मॉड्यूलेट करना। These include first, second and third party laboratories and laboratories where testing or calibration forms part of inspection and product certification. अब जैसे मैंने पहले बताया कि किसी इंडस्ट्री में मतलब दो किस्म की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
या तो वो अपनी लैब से, जो वहाँ पे उनकी फैसिलिटी पे अपनी लैब मौजूद है, वहाँ से टेस्टिंग कर सकते हैं, या अगर फैसिलिटी मौजूद नहीं है या टेस्टिंग की उस हिसाब से इतनी मतलब रिकरेंस में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो वो फिर किसी थर्ड पार्टी लैब से आउटसोर्स कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग को। उसमें फिर ये सारी कंडीशन आ जाती हैं, दीज इंक्लूड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज एंड लेबोरेटरीज वेयर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। ISO 17025:2005 is applicable to all laboratories regardless of the number of personnel or the extent of the scope or testing or calibration activities. ये स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पर्सनल या साइज ऑफ लेबॉर्ट्री या टेस्टिंग प्रोसीजर या टेस्टिंग स्कोप या कैलिब्रेशन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हाउएवर कोई भी लेबॉर्ट्री इंडिविजुअली और वॉलंटरीली इस स्टैंडर्ड को ले सकती है। इसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि इस स्टैंडर्ड की तमाम क्लासेस को वो जो भी हैं उनको मीट करें, उनके SOPs को फॉलो करें। जब हम फूड एनालिसिस की बात करते हैं तो फूड एनालिसिस में जैसे मैंने पहले बताया कि ISO 2000 है और FSSC 22000। बेसिकली FSSC 22000 एक ब्रॉडर वे में काम करता है ये स्टैंडर्ड। उसके अंदर फिर ISO 22000 है। ISO 22000 की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर PRPs आ जाती हैं। PRPs के साथ ही ISO 17025 काम करता है। ISO 17205 का अपना एक जुरिस्डिक्शन है, काम करने का दायरा कार है। वो किस दायरा कार में काम करता है? जो भी ISO 2000 में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर इस लैब एक्रीडेशन और सर्टिफिकेशन के अंडर ही इनको कंडक्ट किया जाता है। When a laboratory does not undertake one or more of the activities covered by ISO 17025, such as sampling and the design of new methods, the requirements of those clauses do not apply. ISO 17025 version 2005 is for use by laboratories in developing their management system for quality, administrative and technical operations. अब ISO 17025 वर्जन 2005 इसके 3 पिलर्स हैं बुनियादी तौर पे। पहला पिलर ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट। ISO 17025 वर्जन 2005 3 पिलर्स पे बेस करता है। पहला पिलर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्वालिटी, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को डील करता है। दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को डील करता है। और थर्ड सिस्टम टेक्निकल पर्सनल और टेक्निकल ऑपरेशंस को डील करता है। 3 पिलर्स हैं ISO 17025 के। फर्स्ट पिलर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को डील करता है। सेकंड पिलर एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल को डील करता है। थर्ड पिलर टेक्निकल ऑपरेशंस को डील करता है। अब इनकी फर्दर डिटेल्स हैं, यहाँ पे हम इन सभी डिटेल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हाउएवर एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो सोलली ISO 17025 पे होगी। हम इन तीनों पिलर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। कोई भी लेबॉरेटरी, किसी भी इंडस्ट्री की लेबॉरेटरी, फूड इंडस्ट्री की लेबॉरेटरी, कोई भी जो ISO 17025 की सर्टिफिकेशन और एक्रीडेशन लेनी चाह रही है, उसके लिए क्या क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए जो उस इंडस्ट्री के बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर, जो भी इस ज़मरे में काम करना चाहता है, उसकी क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होंगी, या वो एज एन इंटरनल ऑडिटर काम करना चाहता है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम इसी स्टैंडर्ड पे ही डिटेल ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। हाउएवर हम 3 पिलर्स की बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ऑपरेशंस, 3 पिलर्स इन तीनों पोर्शंस को डील करते हैं। Laboratory customers, regulatory authorities and accreditation bodies may also use it in confirming or recognizing the competence of laboratories. अब ISO 17025 को लेबॉरेटरी की कॉम्पिटेंस जांचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल
जो इंटरनल ऑडिटर है कंपनी या लेबॉर्ट्री के अपने बिहाफ पे काम कर रहे हैं, या इसके अलावा जो सेकंड पार्टी ऑडिटर है या थर्ड पार्टी ऑडिटर है, वो सभी इन टूल्स को यूज़ करते हैं। अब ये एक टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने दिए हैं ISO 17025 क्वालिटी मैनुअल से, जिसमें इसके मुख्य पोर्शन लाइक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, स्कोप है इसका कि क्या दायरा कार है इसकी वर्किंग का, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज हैं, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनोग्राम है, मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया जाता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल की बात आती है सिस्टम के अंदर, रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, परचेजिंग, इसमें रॉ मटेरियल परचेजिंग है, जो भी केमिकल्स रिएजेंट्स वगैरह उनकी परचेजिंग की डिटेल डिस्कशन होती है, सर्विस टू द कस्टमर, कंप्लेंट्स को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर सिस्टम में क्या अपडेशन और कैसे अपडेशन लेके आनी है, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग वर्क, इम्प्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शंस क्या लेने हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने हैं, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड्स, इंटरनल ऑडिट्स की पहले बात हुई, या मैनेजमेंट रिव्यू, ये मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दो पिलर्स हैं। तीसरा पिलर इसका जो क्वालिटी प्रोग्राम है वो ओवरऑल इन दोनों को कवर करता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या, जनरल पर्सनल को भी ये डील करता है, जो वर्कफोर्स, जो पर्सन्स, जो मैनेजमेंट, जो सुपरवाइजर वहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी डील करता है। अकोमोडेशन, टेस्ट मेथड्स एंड वैलिडेशन, उसमें SOPs भी आ जाती हैं सारी, इक्विपमेंट्स की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए SOPs हैं, फिर मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी है, सैम्पलिंग कैसे करनी, सैम्पलिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सैम्पलिंग परफॉर्म कैसे करनी है, हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स, इसी तरह उनकी प्रॉपर स्टोरेज, हैंडलिंग, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, फिर रिपोर्टिंग, कैलिब्रेशन, इसी तरह सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ये जो ISO 17025 है, इन सभी पोर्शंस को डिटेल में डिस्कस करता है। ओके जी, लेट्स गो फॉर द कंक्लूजन। To whole, we have discussed about good laboratory practices. गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस में हमने जनरल ओवरव्यू लिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए कि GLPs की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। दो चीज़ों पे ये चीज़ बेस करती है। पहली चीज़ है कि जो लेबॉर्ट्री है उसकी एफिशिएंसी, उसको मेजर करना किसी स्टैंडर्ड, किसी सिस्टम, किसी प्रोसीजर या किसी रूल एंड रेगुलेशन के तहत, जिसमें मुख्तलिफ SOPs हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकती हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको GLPs में ओवरऑल डिस्कस किया जाता है। गिव्स बेटर इमेज ऑफ कंपनी एज क्वालिटी प्रोड्यूसर। डेफिनेटली जब क्वालिटी इंश्योरेंस मैकेनिज्म अगर अच्छा बेहतर करना है तो उसके लिए फिर लेबॉर्ट्री को एफिशिएंटली वर्किंग लेबॉर्ट्री का होना ज़रूरी है। आया आपके अपने विसिनिटी पे है या आप आउटसोर्स करते हैं, हाउएवर क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम में लेबॉर्ट्री की एक अहमियत है, उसके बगैर हम क्वालिटी को अश्योर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अगर आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस प्रॉपर है तो आपके लिए फिर ट्रेड बियॉन्ड बॉर्डर्स उसके दरवाजे खुलेंगे। उसके लिए फर्दर आप बियॉन्ड बॉर्डर्स जाने के लिए फिर आप GLP का जो भी स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किया है ISO 17025, उसको आप फर्दर में उसको कंप्लाई करके लेके चल सकते हैं। Provide hot tips on analysis of data as well as measure uncertainty and perfect record keeping and guidelines for doing testing and measurement in detail. Finally, GLP provide guidelines and better control for maintenance of instruments, environment control, preservation of test records. So that is all about today's training, good lab practices. Now, house is open for general discussion, and you may ask any question that you have in your mind. So participants, over to you. आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि जो हम लैब में एक्सपायरी आते हैं उसकी सोल्यूशन वगैरह जब
कोई केमिकल सोल्यूशन बनाते हैं, सपोज एपीटी का 60% सोल्यूशन होते हैं या 10% फेरिक का सोल्यूशन बनाते हैं, तो उनकी जो एक्सपायरी है वो किस मतलब के लिए चाहिए, क्या उसका कोई रूल एंड रेगुलेशन है इसके? सर बिल्कुल इसका रूल रेगुलेशन है। इसमें मतलब स्पेसिफिकली तो मैं नहीं अभी यहाँ पे बात कर सकता, क्योंकि हमारी इसके बाद ना एक ट्रेनिंग होगी जिसमें हम शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। उसमें फिर हम अकॉर्डिंग टू सैंपल बात करेंगे कि किस सैंपल की एक्सपायरी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसका बाकायदा एक मेथड है, बाकायदा तरीकाकार है। हम इंशाल्लाह उस पर एक फर्दर जो ना लेटर ऑन स्टेजेस में ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी हम इसमें इनवाइट करेंगे। और इसका जनरल आंसर यही है कि एक्सपायरी एक तो जो भी आपका ओवरऑल जो केमिकल जिसको आप यूज़ कर रहे हैं फर्दर फार्मूलेशन में लेके आ रहे हैं, उसके जो कंटेनर है उसके ऊपर जो ऑलरेडी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सपायरी को मेंशन किया जाता है। हाउएवर जो आपने जो रिएजेंट प्रिपेयर किया है, मतलब जो डाइल्यूशन आपने मेड की है उसको जो कंटेनर्स के ऊपर इंडिकेशंस हैं या उनके साथ जो मुख्तलिफ गाइडिंग लीफलेट्स और आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको डिटर्मिन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में इसकी कैलकुलेशन का बाकायदा मेथड है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम इंशाल्लाह इस पर एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को फर्दर हम डिटेल में उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। हाउएवर एक्सपायरी जो इसकी शेल्फ लाइफ है उसको मैक्सिमम करने के लिए आप उसकी प्रॉपर स्टोरेज को उसका चेक एंड बैलेंस मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल आपने डाइल्यूशन मेड की है, तो उसको उसकी प्रॉपर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, जो स्टोरेज कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको स्टोर करें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को मैक्सिमम इन्हांस किया जा सके। हाउएवर ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि मैक्सिमम ऑन एन मैक्सिमम आप इस चीज़ को उसकी शेल्फ लाइफ को लेके जा सकते हैं। हाउएवर ऑन एन एवरेज आप इस चीज़ को इसकी शेल्फ लाइफ को आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि आप उसके कंटेनर को ज़रूर स्टडी करें। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं कि इसकी टेम्परेचर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इसको इस टेम्परेचर पे फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में रखना है, या जनरल आप जो है रूम टेम्परेचर पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे आप उसको रख सकते हैं। जी किसी और का क्वेश्चन हो? पार्टिसिपेंट्स आप कोई और क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। Okay, I think no more questions right now. So we have covered all the aspects of today's training, जिसमें हमने जो जनरलाइज्ड डिस्कशन की है GLPs के बारे में, उसमें मुख्तलिफ SOPs की बात की है, मुख्तलिफ जो GLPs की रिक्वायरमेंट्स हैं, GLPs के 10 प्रिंसिपल्स की हमने डिस्कशन की है, जिसमें फर्दर फैसिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन हुई है, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग की बात हुई है, जिसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात हुई है, पर्सनल मैनेजमेंट की SOPs की बात हुई है, डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई है। सो इन सभी चीज़ों को, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एज पर गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है। इसी तरह से हम GLPs को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग।